जब आपको ये पता लगा, स्कोर ये देखा कि अब तो भाई साहब IIT हो सकता है, what was the feeling? Happiness at that time, it was relief कि सारी जर्नी खत्म हुई अब और फाइनली मिल गया जितनी मेहनत जिस चीज़ के लिए की थी। तो अब जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं इस साल, उनके लिए वामन गुप्ता की सबसे सॉलिड एडवाइस, इस चीज़ को सेंटर में रखना और कोई चीज़ नहीं है। It is a skill-based exam, English reading, comprehension. It is a skill-based exam. और वो skill I think आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, आपका 2 साल के अंदर आपके अंदर इनबिल्ट आ ही जाएगी वो। सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको लगता है, oh my God, this was like rolled away. See, the thing is, it wasn't a tricky exam. It was basically an exam which gave us a surprise, which was it replaced one section that used to come with another section. Unfortunately, अभी भी incidents होते हैं of ragging. What's your experience? थोड़ा सा तो होता है बट वो थोड़ा सा is probably to break the ice. College secrets अभी नहीं बता सकता। Your mom told me कि एक डायलॉग था आपका कि I am a third generation lawyer. Why should I give class? मैं मम्मा से वही पूछता था, why am I giving CLAT? Why am I traveling to Delhi? Why am I preparing so hard for it? While others are just laid back and they are saying that हमारे तो पापा का ऑफिस है ही है, हम तो बैठ ही जाएंगे उसमें। मेरे मॉक्स में स्टार्टिंग से ही आई यूज्ड टू गेट लाइक टॉप 20, टॉप 30 रैंक्स, तो फिर मुझसे लगता था मैं तो निकाल ही लूँगा। द रीज़न व्हाई आई स्टॉप डूइंग हार्ड वर्क बीच में, बिकॉज ऑफ विच आई हैड अ डिप एंड देन आई गॉट अ रियलिटी चेक बिकॉज ऑफ विच आई देन स्टार्टेड इट। This is what I wanted to know. There was this recent video of IITians wherein they were dancing, and a lot of people who saw those videos even remarked silly or it is not holistic development, right? So what two of you think on this? I think it is a little unfair to judge them that way. It is generally said that behind every successful man there is a woman. Is it that behind every successful student is a mother? Definitely. That one thing that you have to do. बिना इसके भाई साहब फिर अब छोड़ दो जेई के प्लान्स। Mentors told me PYQs घोल के पी जाओ, जितनी बार PYQs कर सकते हो सॉल्व करते रहो। How's the feeling? उसकी वजह से we are feeling so proud. हर जगह सारे पूछते हैं कि you are an IITian mother. कैसे जर्नी होती थी, लुधियाना से रहते हो और कैसे आप दिल्ली जाते थे? 11 o'clock we used to reach Delhi और 11:30 की क्लास होती थी, and after that I just sit outside on the couch or a sofa, whatever be there, or standing for 4-5 hours. 4-5 घंटे खड़े रहते थे। You or your child is preparing for a competitive exam. Well, a big question as in what to do or what not to do. Every child has its own journey, be it in academics or extracurricular. But today I have two very special children here. They are students and they are achievers. One is studying in IIT Madras, the other has cleared CLAT and ALET. So I have with me Krishav Gupta, welcome, and Vaman Gupta. Thank you. Well, while talking to you, the first thing that occurs to me, what is this with Gupta genes? I mean, so many toppers we come across, इतने सारे गुप्ता होते हैं. How does that, I mean, is it the Gupta dynasty or something? Banya genes basically you can say. What do you have to say? Nothing. It's just a You big also family. mentioned, Krishav, you happened to mention to me that many of your friends who got Yeah. through were Gupta. Yeah, Yeah, they were Guptas. yeah. I didn't think about it much before, but now that I think about it, I think there's something going on. There is? Yeah. Vaman, what do you know about Gupta dynasty? Gupta dynasty is called, it was the golden age of Indian history when I studied it, and it is during the Gupta dynasty only when we were at the peak, we were at the pinnacle of art, literature and as well as education. So इसलिए हो सकता है कि गुप्ता जीन्स वहाँ से ही हमारे अंदर घुस गए। No, I'm just kidding. Of course, we have a lot of students from other communities, other caste, creed, but this was just on a lighter note. अच्छा, अब हम सबसे पहले जो आपसे जानना चाहेंगे कि
कृष्णव, तुमसे स्टार्ट करते हैं हम। आईआईटी मद्रास में पढ़ते हो भाई साहब, तो कैसा लगता है जब मम्मी को कोई बोलता है या मम्मी उससे बोलते हैं मेरा तो बेटा आईआईटी में पढ़ रहा है? मम्मी का रिएक्शन बताओ पहले। मम्मा का रिएक्शन, मम्मा को बहुत अच्छा लगता है आई गेस। मम्मा शोज आ नहीं करते बट मम्मा आई थिंक इज़ वेरी हैप्पी अंडर। मेरे लिए तो बहुत नॉर्मल हो चुका है कि अब ठीक है। तो कृष्ण, जब आईआईटी के बारे में सोचा, जब तुमने सोचा कि मुझे जेईई क्लियर करना है, राइट, तो ये सोचा था कि आईआईटी ही जाएंगे या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो जाए? मतलब हाँ, पहले तो मुझे ये बताओ, जेईई का मतलब खाली आईआईटी तो नहीं होता ना, कि खाली आईआईटी होता है? खाली आईआईटी नहीं होता, क्या होता है? एनआईटीज भी होते हैं। जेईई एडवांस विल गेट यू इनटू टॉप आईआईटीज एंड एनआईटीज, मतलब ऑल आईआईटीज एंड एनआईटीज, ऑल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। सो वो सारे आते हैं। तो जब आपको ये पता लगा, स्कोर ये देखा कि अब तो भाई साहब आईआईटी हो सकता है, what was the feeling? What was the feeling? It was not happiness at that time, it was relief कि सारी जर्नी ख़त्म हुई अब और फाइनली मिल गया जितनी मेहनत जिस चीज़ के लिए की थी, तो बस थैंक यू। जर्नी बोला तो अब जर्नी की बात करते हैं। कब शुरू की थी जर्नी? जर्नी शुरू हुई थी 10th स्टैंडर्ड में। हमने कोचिंग ज्वाइन की थी और पढ़ाई शुरू की थी और फिर। सो आपको लगता है कि अगर किसी ने आईआईटी कोई एस्पायर कर रहा है तो 10th से पढ़ें तो उससे उतना ठीक है या उससे पहले पढ़ाई करनी पड़ती है? इट्स फाइन, जो करना चाहते होते हैं वो तो कहते हैं कि अगर कोई आराम से पढ़ ले तो इट्स नॉट टफ। मेरे अभी फ्रेंड्स जो कॉलेज में हैं, दे आर लाइक अगर आराम अच्छे से मेहनत कर लेते हैं ना, हम तो एमआईटी में बैठे होते हैं। सो हाँ, इट्स नॉट कि आपको 9th स्टैंडर्ड से शुरू करना है या 10th स्टैंडर्ड से, इट्स अप टू यू। It's up to you. So Vaman, you have cleared CLAT and ALET. Yes. How do you feel? I feel like the journey. Exactly. इतना ज़्यादा travel, इतनी ज़्यादा मेहनत सारी, अब जाके it has finally given me returns, and I feel very relaxed now because all my friends are right now preparing to are thinking about which college में जाएं, कौन सा entrance दे, कभी शिवनादर का, कभी फ्लेम्स का, कभी इसका फॉर्म भरे, कभी उसका। मैं पीछे बैठा हूँ, मैं relaxed हूँ, मेरी एडमिशन हो चुकी है, अब मैं आराम से चिल करूँगा। तो अब जो बच्चे अपीयर कर रहे हैं इस साल, उनके लिए वामन गुप्ता की सबसे सॉलिड एडवाइस, अदरवाइज तो देखो भाई पढ़ाई करो, ये करो, बस सॉलिड एक ऐसी चीज जो आपको लगता है कैन बी अ गेम चेंजर। इस चीज़ को सेंटर में रखना, और कोई चीज़ नहीं आपको चाहिए, बिकॉज क्लैट एंड एलेट आर सच एग्जाम्स जो आपको कभी भी कर्व बॉल थ्रो कर सकते हैं और हर साल थ्रो करते ही हैं। एज लॉन्ग एज यू रिमेन काम, एज लॉन्ग एज आप उसको मैनेज कर लोगे, यू विल डेफिनेटली क्रैक क्लैट एंड एलेट, बिकॉज उसमें ज़्यादा सिलेबस की बात ही नहीं, इट इज़ अ स्किल बेस्ड एग्जाम, इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इट इज़ अ स्किल बेस्ड एग्जाम। और वो स्किल आई थिंक आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे, आपका 2 साल के अंदर आपके अंदर इनबिल्ट आ ही जाएगी वो। इट इज़ जस्ट दैट आप मेंटल हेल्थ को सही रखो और अपने आप को काम रखो ड्यूरिंग एग्जाम, दैट्स इट। ओके, सो अभी यू जस्ट सेड जो आपने एग्जाम दिया, सी आई कैनॉट आस्क कृषिव दिस क्वेश्चन, अच्छा सबसे ट्रिकी क्वेश्चन कौन सा था, बिकॉज इट्स टेक्निकल, बट ऑफ कोर्स आई कैन आस्क यू व्हेन यू टुक द एग्जाम, सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको लगता है ओ माय गॉड दिस वाज लाइक रोल्ड अवे? See, the thing is, it wasn't a tricky exam. It was basically an exam which gave us a surprise, which was it replaced one section that used to come with another section. For logical reasoning, we used to get para-based, we used to get critical reasoning, but CLAT ने ऐसी curveball throw करी, उसने हमारे को analytical reasoning डाल दी उसमें। तो it was easy to solve, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस हो, बहुत easy exam था सॉल्व करने के लिए, बट at the end of the day बात तो वही है, जिसने वहाँ पे अपने आप को काम रख लिया, जिसने वहाँ पे कर्व बॉल को हैंडल कर लिया, उसका एग्जाम निकल गया। क्योंकि इस बार भी आप देखोगे द कट ऑफ इज सुपर हाई, टॉप रैंकर्स के 110 प्लस आते हैं, विच इज अनहर्ड ऑफ, बट द थिंग इज वही है, जिसने मैनेज कर लिया उसने मैनेज कर लिया। सबसे कोई ऐसा क्वेश्चन दैट यू थॉट दैट दिस वाज वेरी सिंपल बट द वे दे रोल्ड इट वाज समथिंग दैट ऑफ कोर्स यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट? In the analytical reasoning one only, we had one paragraph which we had to make a table and we had to solve it using the table. वहाँ पे एक line हमने identify करनी थी, उस line से वो question solve हो रहा था. When I watched the analysis on YouTube after giving the exam, वहाँ पे they were saying that वो line most of the kids did not pick up. तो that was the main part of the exam. कान आँख खोल के पेपर पढ़ने वाली बात थी. Okay, coming back to you now that you've joined IIT. So Krishiv, unfortunately अभी भी incidents होते हैं of ragging. What's your experience? Not at all. Not at all? Our seniors don't even interact with us, they're so afraid of ragging.
तो मे बी नॉर्थ में हो, साउथ में तो देयर इज नो कल्चर. नो वेट आई विल टेक दैट बैक. देयर इज देयर. थोड़ा सा तो होता है बट वो थोड़ा सा इज प्रॉब्ली टू ब्रेक द आइस. कॉलेज सीक्रेट्स अभी नहीं बता सकता है. बट ये तो डेफिनेटली है कि फन होता है कि इट्स ऑल इन गुड फेथ. आपके साथ कुछ ज़्यादा नहीं होगा. दे नेवर क्रॉस द लाइन. इट्स ऑल फन. एटलीस्ट इन इंजीनियरिंग. मेडिकल का तो मैं बोल नहीं सकता. So Vaman, you did mention that it's a journey, right? आपको अपना mind हमेशा balance करके रखना चाहिए. So talking about your journey, ups and downs आए होंगे. How did you? बहुत सारे ups and downs आए. It was Do basic. share. बीच में in September मैं हिल गया था. I did not study for 2 months. September, October, I did not study at all. I still remember कि your mom told me कि एक dialogue था आपका कि I am a third generation lawyer. Why should I give class? Exactly, मेरा वही mindset था because I used to see मेरे around जो भी lawyers के बच्चे हैं, they were very chill. वो दे ही नहीं रहे थे CLAT. वो तो कहते हैं हमने OP जिंदल चले जाना है, हमने पंजाब यूनिवर्सिटी चले जाना है. No doubt they are top institutions, but मैं मम्मा से वही पूछता था why am I giving CLAT? Why am I traveling to Delhi? Why am I preparing so hard for it? While others are just laid back and they are saying that हमारे तो पापा का ऑफिस है ही है, हम तो बैठ ही जाएंगे उसमें. तो what I got in response was पापा का ऑफिस तो एक लेवल पे है. To go 3 steps beyond that, to go 4 steps beyond that, उसके लिए तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. And you'll have to do 3 times more hard work, 4 times more hard work because your dad is at such a level. उसको मैच करना ही बहुत डिफिकल्ट है. उसको पार करने के लिए you'll have to put in all, you will have to pull up your socks. Okay, I would like to ask both of you a question here. And whoever is listening to this podcast, see, I'm not demeaning anybody, but yes, it's an observation and it was in news. And of course, people were discussing about it. So there was this recent video of IITians wherein they were dancing. And a lot of people who saw those videos even remarked silly or, it is not holistic development, right? So what two of you think on this? Well, he should start with it because it is his field more. So yeah, I would like to know what's your take on it. Let's start That with is you. definitely true. That observation is accurate. That people studying for this exam do not develop holistically, and I think it is a little unfair to judge them that way. You see, in life we're always learning. So at this stage of their life, they devoted all of their strength and their capabilities to one section, that is studies. So they left holistic development behind, but they can catch up later on in life. You really can because I always tell my son कि बेटा whatever you do, learn a few things including dance because I don't want anyone telling you पप्पू का dance आला. Yeah, that is one thing definitely, but still. But okay, now Krishav, asking you now that you're in IIT, so you said that they can catch up on that later on in life. But do you think they really can? Do they get the time? Yeah, that is true. See, being able to and you actually trying to pursue that is different. So I think most people leave that behind. Maybe it's So what do you think? How can you balance on that? That okay, of course you're studying. I always feel that there are everything should be divided. Like when you have your exam just on your head, you have to leave the world. But otherwise, you need to devote. You need to balance it out. So did you do that? definitely. You did. What was your schedule when you were studying for IIT? See, I was very. I would say JEE. Yeah, I was very easygoing with that. Okay. Were you? I had at least I think that. Easy going होके भी IIT मद्रास निकाल गए भाई. No, definitely. मतलब, when I was doing the prep, I always had fun with friends, and I would go out sometimes, maybe once a month, have parties and all, birthday parties, and outings with friends. And TV, I would watch a lot of TV. So I think I am not a good candidate to ask a question how your journey. You do have a point here because one cannot ignore the fact that some people are blessed. They are you see there's somebody even Murakami mentions this, one of my favorite authors. In one of his books he's mentioned that some children he mentioned are so good at one thing, they will probably start with the piano the first time and they would ace it,
while the others will struggle. And likewise, there are children who are genius, right? Like we say कि ये तो शुरू से ही होनहार बिरवान की होती चिकने बात, right? While the others struggle. So yes, some people get it through hard work. Some people like you know, just take it easy and crack it. So I want to know here, someone who's not as blessed as somebody else in terms of academics, let's talk about academics right now, will struggle more, will put in more hard work, while somebody like you who said, चलो कब सोचा था 9th और 10th में, कैसे start कैसे किया कि JEE कर लेते? Okay, well, first of all, इतना भी easy नहीं going था. There was tough, it was tough. But I would say I was a little more easygoing than others. I won't say I was very easygoing. मतलब था tough थोड़ा तो, of course. But हाँ, I started in 10th. 10th standard तक मेरे को ये पता था कि JEE पता चला था कुछ होता है. तो बस मेरे को और कुछ पता ही नहीं था. Actually, it was lack of information at that time. एक ही चीज़ पता थी JEE के बारे में. और तब फैंटेसी वर्ल्ड में भी रहता था कि of course यार मैं तो कर ही लूँगा. तो उस माइंडसेट के अंदर आप शुरू से मतलब you used to score well. Yes. Yeah, so that's right. That was like, you know, a tip of the iceberg. मतलब it made me feel confident कि I can do stuff. I had the same problem as well. मेरे mocks में starting से ही I used to get top 20, top 30 ranks. तो फिर मुझे लगता था मैं तो निकाल ही लूँगा. The reason why I stopped doing hard work बीच में because of which I had a dip, and then I got a reality check because of which I then started again. This is what I wanted to know, right? Because sometimes that you know you always had been scoring good marks. Towards the goal, जब आप पहुंचने लगते हो destination में, तो कई बार आप वो you become that rabbit. Yeah, you falter. Yeah, instead of the tortoise, you become a rabbit. So it's really important, I think, when you are racing for a competitive exam, to not be a rabbit. If you have the qualities of a rabbit, then maintain it. Yeah, exactly. Yeah, don't I think stop. more than that, we weren't even the rabbits in the true sense, because the rabbit has the capability. We were in the false pretense that we had it. Okay, so बचपन में मार्क्स स्कोर करते रहे तो वो अंदर वो फॉल्स एक पर्सोना, एक सेल्फ इमेज बन गई कि हाँ हम तो ब्रिलियंट किड्स हैं. बट दैट्स नॉट ट्रू एट ऑल. Because when you compete for something like this, you are among the equals. Yeah, exactly. And when that hits, it hits hard. When the bubble bursts कि हमारे से ऊपर इतने बच्चे हैं, it is very humbling to see that. Because till 10th grade तो you are in your own bubble, right? अपने ही स्कूल में you are What top was your rank. score in 10th? 99.4%. ये point 6 कैसे रह गए वामन? बस क्या? Anyway, yes, you're right. Coming back to it, yes. So 10th का जैसे ही bubble burst हुआ, when I went to Delhi, I saw kids who were more brilliant than me, who were scoring more marks, who were studying more, who were putting in more hard work. It was very humbling to see. और फिर it forced me, it inspired me to work hard as well. So it is very important. I quite liked your selection of word here, that it was humbling for you, and that motivated you even further. Brilliant, yes. वो कहते तो हैं वैसे तो talent beats hard work when talent doesn't work hard. Oh yes, very important, yes. Now, if you have like someone who cleared JEE, and what was your score in JEE? 256. And in mains? 350. 350. So someone who is aspiring, who probably this year, next year, or in the next 2-3 years want to clear JEE, what do you think is that one most important thing, that one thing that you have to do? बिना इसके भाई साहब फिर अब छोड़ दो JEE के plans. The biggest thing is consistency daily. मतलब डेली के टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, और एंड टाइम के अराउंड आते आते PYQs करना. PYQs आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम देते हुए, क्योंकि क्लासेस में यू विल लर्न स्टफ दैट इज़ अहेड ऑफ JEE, बिकॉज टीचर्स का वो जॉब है आपको एवरीथिंग के लिए प्रिपेयर करना. बट जब PYQs करते हो ना, यू अंडरस्टैंड द रियल लेवल ऑफ द एग्जाम. सो यू विल गेट टू नो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगा तो फिर उनकी प्रैक्टिस होएगी तो एग्जाम में यू आर फास्ट टू सॉल्व दैट. Okay, Vaman. Same for me as well. My mentors told me PYQs घोल के पी जाओ. जितनी बार PYQs कर सकते हो सॉल्व करते रहो. ALET के go back to 2008 जब पहला CLAT और पहला ALET हुआ था, अगर वो भी खत्म हो जाए, go further back, go to जब NLS का अलग से पेपर होता था, नालसार का अलग से पेपर होता था, वो सॉल्व करते रहो. Because
this paper में you have to get into the mind of the exam setter. तो फिर to get into that mindset you need to solve PYQs. Plus newspaper for CLAT and AILET is your holy grail. उसके बाहर कुछ है ही नहीं. सारी जो GK है that is also comes from the newspaper. क्योंकि if you ask your dad or anyone who reads the newspaper daily, उनको भी पता होगा कि क्लैट और एलिट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वो भी सॉल्व कर पाएंगे. अगर 28 मार्क्स का वो भी 10-15 ला पाएंगे अगर वो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़े. प्लस न्यूज़पेपर से यू ऑल्सो बिल्ड रीडिंग स्पीड and you also build stamina, which is the main thing that is required for. Right. And you call CLAT mini. Yeah, because it builds that temperament in you, it builds that GK पढ़ने वाली skill in you, and आप पूरे साल अपडेटेड रहते हो करंट अफेयर्स से. आप हर एक टॉपिक के पीछे जाते हो, आप हर एक माइन्यूट टॉपिक को इतनी डिटेल में पढ़ते हो, जो मुझे लगता है कि यूपीएससी में इसको ही बस ग्रैंड स्केल पे होता है. आई एम नॉट रिड्यूसिंग द इम्पोर्टेंस और द हार्ड वर्क पुट इन बाय यूपीएससी एस्पिरेंट्स, बट क्लैट भी बड़ा मुश्किल होता है इसमें भी. So now, without sounding feminist, would you agree with me? And ladies and gentlemen, if you're listening to this, trust me, I don't intend to demean, but I'm talking on a broader perspective. It is generally said that behind every successful man, there is a woman. Is it that behind every successful student is a mother? Definitely. So why not call them here? Yeah, sure. So we have Vaman's mother, Neha Gupta, and Krishiv's mother, Neha Gupta. So not that we have the Gupta square, we have the Neha square as well. Come join us. So Neha Gupta, you are Krishiv's mother, you are Vaman's mother. How's the feeling? No, it's nice, privileged और honored also कि बच्चे ने कुछ achieve किया है. उसकी वजह से वी आर फीलिंग सो प्राउड. हर जगह सारे पूछते हैं कि यू आर एन IITian मदर, हाउ डज इट फील? इट्स लाइक गुड. नेहा बहुत हार्ड वर्क है. मैं धूल जाती है ना. सो टेल अस अबाउट योर जर्नी कि कैसे तुमने वामन को, हम लुधियाना में रहते हैं, और कैसे तुम ट्रैवल करती थी, कैसे तुमने मतलब दुनिया छोड़ी. Actually I am also lawyer. So from lawyer background, married in a lawyer family. So I always wanted कि now next step, I don't wanted my son to stop here. आगे बढ़ना चाहते. हाँ. Obviously मुझे ये लगता था जहाँ से हमने की है वहाँ से he should not do law, he should do from somewhere else. So that was the only reason why we chosen CLAT or AILET, and it was very tough. टफ में भाई बताओ कैसे जर्नी होती थी. लुधियाना से रहते थे या रहते हो, और कैसे आप दिल्ली जाते थे? वी यूज टू ट्रैवल ऑन सैटरडेज वीकेंड्स. तो हम सुबह रात को डिसाइड करते थे सुबह चलते हैं दिल्ली. तो वी गॉट एडमिशन इन दिल्ली कोचिंग सेंटर, और वहाँ पे सैटरडे को हम सुबह मॉर्निंग 7 o'clock हम ट्रेन पकड़ते थे. 11 o'clock वी यूज टू रीच दिल्ली, और 11:30 की क्लास होती थी. And after that, I just sit outside on the couch or a sofa, whatever be there, or standing for 4-5 hours. 4-5 घंटे खड़े रहते थे. हाँ. कि नहीं चलो ये अंदर है तो इसको कुछ चाहिए होगा, या he used to ask me, Mama, what should I eat? तो मैं उसको I just arrange for him. और सब कुछ बस ऐसे. संडे को रात को हम 7 o'clock वापस आ जाते थे. 7 o'clock की ट्रेन लेके 4-5 घंटे 11:30 पहुँचते थे, और सुबह ये स्कूल जाता था मंडे को. अगले दिन स्कूल जाता था. तो अब मेरे को एक बात बताओ नेहा, इस पूरी स्ट्रगल में जब आप उस फेज़ में होते हो और आपको ये लगता है, जैसे वामन ने बताया कि बीच में ऐसे फेजेस आए, तो बच्चे को तो मोटिवेट करना है लेकिन खुद को भी मोटिवेट करना होता है. मेरी पता नहीं बाय गॉड्स ग्रेस आई वाज सो मोटिवेटेड. मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ये बोल रहा है मुझे नहीं करना तो छुड़वा देती हूँ. नहीं, करना ही है बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. मतलब कई बार होता है कि आप जैसे इसको हो सकता है बीच में लगा हो कि मुझे नहीं करना है. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा, कभी एक दिन भी ये फीलिंग नहीं आई ये तो बच्चा बोलता रहेगा. मुझे ये था नहीं, मुझे तो करना ही है. आई वुड लाइक टू आस्क यू दिस कि बच्चों को लगता है कि मम्मा आपको नहीं पता, वैसे फेसेस आते थे. हाँ दोनों. हाँ, और उसको कैसे, बिकॉज बच्चों के लिए तो ये बड़ा कॉमन है, मम्मा आपको नहीं पता.
बिकॉज दे थिंक उनको तो सब कुछ पता है, जनरेशन थिंग. बट वामन यूज टू से, बट वो जब मैं उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करती थी और एक्स्ट्रा मटेरियल और बियॉन्ड सर्टन थिंग्स आई गो, तो ये एडमिट करता था, नहीं मम्मा ये आपने की है, ये तो मैं सोच भी नहीं रहा था. तो उसी से मे भी हो सकता है इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मिला है, कुशन मिला है, सब कुछ उसी वजह से हुआ है. या नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं था, बिकॉज ही वॉज ऑल हाँ ऑन हिज ओन. बस मेरा काम सिर्फ पिक एंड ड्रॉप का था एंड दैट्स इट. मेरे को अगर ये पूछना होता था कि समझ में आ रही है टीचर की, अगर नहीं समझ में आ रही देन लेट मी नो, फिर मैं किसी और ढूंढती हूँ. बट अदरवाइज इफ़ यू आर क्लियर, टेस्ट हो रहे हैं, अच्छा अटेम्प्ट हो रहा है, और इसने साथ में फिर कौन सा था, एक एग्ज़ाम दिया हुआ था फ्रॉम चंडीगढ़. ही वॉज अपेयरिंग फॉर एवरी संडे, ही वॉज गोइंग एंड गिविंग द टेस्ट. अगर उसमें ठीक आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स ओके, इतना नहीं था. बहुत कॉन्ट्रोडिक्टरी जर्नी रही है, बट आई थिंक ये दोनों जर्नी मदर्स को सी बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर चाइल्ड. यस, मतलब मेरे को ऐसे था, बस मेरा पिक एंड ड्रॉप का ही काम और था. एक इसका ये था कि जो लॉ के एंट्रेंस का जो भी कोचिंग या कुछ भी है, Exposure इतना नहीं. एक्सपोजर इन लुधियाना नहीं था इतना. एक स्मॉल टाउन में इतना Yes. एक्सपोजर नहीं था. Yes. जेई का तो सबको पता ही है, सालों से चला आ तो रहा मैं इसको है. पहले चंडीगढ़ लेके गई, तो चंडीगढ़ ही वॉज नॉट हैप्पी. कहता मम्मा इट्स नॉट लाइक आई कैन नॉट डू फ्रॉम हेयर, इट्स नॉट मेरे लेवल के बच्चे नहीं है, तो आई डोंट वांट टू डू फ्रॉम हेयर. तो इसको थोड़ा और एक्सप्लोर अपने आप को करना था, तो वी वेंट टू दिल्ली और वहाँ पे ही लाइक्ड इट. टीचर्स एंड मेंटोर्स बहुत हेल्प. आई थिंक आप दोनों से बात करके ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो समझ में आई है कि आपको अपने चाइल्ड को असेस करना चाहिए. अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है देन प्रॉबेबली यू कैन टेक अ बैक स्टेप. बट अगर आपको लगता है, जैसे मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मेरे से सब पूछते थे कि अगर मेरी डॉटर मेरे साथ खड़ी है तो व्हाट डू यू वांट टू डू. ये 2-3 साल पहले की बात है. तो मैं बोलने लगी आई थिंक. जैसे मैंने आई थिंक बोला तो उन्होंने मुझे कट शॉर्ट किया और बोला कि लिसन, बच्चों को करने दो, माँ बाप को अपना इम्पोज नहीं करना चाहिए. उस समय तो मैं चुप हो गई, आई टुक अ बैक सीट. बट देन आई आस्क्ड माय डॉटर व्हाट डू यू वांट टू डू. शी जस्ट डिड दिस. आई से देखो बेटा, या तो आपको क्लैरिटी हो कि आपको लाइफ में ये करना है, देन आई एम देयर टू सपोर्ट यू वट एवर यू वांट टू डू. ऑफ कोर्स आई विल गिव माई इनपुट्स, आई विल सजेस्ट अ फ्यू थिंग्स, बट देन आई वुड नॉट बी हार्ड प्रेस्ड ऑन. बट अगर आप ये कर रहे हो देन यू हैव टू लिसन टू अस. सो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट आप देखो, आपकी जर्नी अलग रही, आपकी जर्नी अलग रही, मेरी जर्नी अलग है. सो आई थिंक एज पेरेंट्स इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि हम अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करें. एंड सबसे जो ज़रूरी है कि कंपैरिजन नहीं नहीं करें. होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. बिकॉज माई 2 sons, देयर आर माई 2 sons, बिल्कुल डिफरेंट हैं. एक तो था पूरा इंजीनियरिंग में एंड दूसरा बिल्कुल आर्टिस्टिक. तो आई हैव नेवर कंपेयर्ड बोथ ऑफ देम. और इनफैक्ट हमने ये देखा है, जो पहला बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, बेचारे दूसरे पर ऐसा बोझ आ जाता है. ही इज नॉट लाइक दैट, ही इज सुपर इंटेलिजेंट. Of course you try. But I have never compared him with Krishiv. Every child is special. Every child is special. Like we always say, if you judge the ability of a fish to climb a tree, it will spend its whole life thinking it to be stupid. And I think Akshit is more capable and more, he has more creative skills than Krishiv. Like whatever he'll put into it. Okay, now अब तो ये है कि you are saying that he is more creative. But अगर कितनी बार हमने देखा, like I personally know of सिबलिंग डुओ जिसमें कि पहला बच्चा तो आईआईटी में है और दूसरा बच्चा डिप्रेशन में है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा. ये इट रियली डिपेंड्स कि आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि डोंट कंपेयर. यस, यू हैव टू प्ले टू देयर स्ट्रेंथ्स. मेरा जो आई आल्सो हैव 2 sons, तो हिरेन भी यही बोलता है, कहता मम्मा नाउ मतलब आई हैव टू गो. यस, ही फील्स मोटिवेटेड. और कि मुझे भैया कि मम्मा मुझे ये करना है, आई हैव टू. मैंने कहा तो यहीं से लॉ कर लेना. कहता नहीं, आई हैव टू क्रैक क्लैट मम्मा. तो ऐसा नहीं है कि वो डिप्रेशन में या टेंशन में बोलता है, ऐसा कुछ नहीं. ही फील्स मोटिवेटेड और ही नोज कि व्हाट ही वांट्स टू. सो नेहा, इससे पहले तो वामन ने एक एडवाइस दी थी टू स्टूडेंट्स. व्हाट इज योर वैल्यूएबल एडवाइस फॉर मदर्स? मुझे ये लगता है बच्चों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, वॉट एवर बी द रीज़न. कि कहीं पे बच्चे डिमोटिवेट फील करते भी हैं कि हमें नहीं करना है, या बच्चे तो बच्चे हैं, ठीक है ना. वी नो बेटर कि हाँ इनका फ्यूचर क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है. जहाँ पे बच्चे थोड़ा सा फील करते हैं कि नहीं हमें नहीं करना है, तो उनको पुश करो
उनको जैसे भी उनकी हेल्प चाहिए, जैसे भी उनको चाहिए, जो भी वो मांगते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए, पेरेंट्स को उनकी पूरी हेल्प करनी चाहिए। सेम बट लाइक ऑलवेज, क्योंकि इतना प्रेशर होता है ना, एवरी टाइम देयर इज सो मच प्रेशर, बट यू हैव टू फोकस ऑन योर चिल्ड्रन, मतलब क्या उनका मेंटल स्टेज जा रहा है। समटाइम्स दे फील लॉस्ट ऑल्सो, तो आपको एक बैक ट्रैक रखना चाहिए कि उनके साथ बातें करते रहो। यस, यू मतलब उनसे हाँ, निकलवाते रहो बिल्कुल। कि दे आर नॉट फीलिंग स्ट्रेस ऑल्सो। स्ट्रेस नहीं देना, अगर स्ट्रेस दोगे सारा काम वहीं पे खत्म। I used to have Vaman's password and he did not know कि मेरे पास उसका पासवर्ड है, तो I came to, मतलब मुझे उसका सब कुछ पता होता था कि why he is feeling low और कैसा है, तो ये सोचता था मम्मा को सारी मेरी बातें कैसे पता चल जाती है, she is a magician। जैसे मेरे केस में, दिस इज माय यंगर सन, ही ऑलवेज कीप्स अ चेक ऑन माय डॉटर कि आदित्य दीदी ये करिए, आदित्य दीदी मुझे मम्मा आदित्य दीदी का ये ग्रुप बना हुआ है। मुझे पता होता था आज इसकी इस फ्रेंड से लड़ाई होगी, तो मैं वैसे ही पूछ लेती थी कि वामन क्या हुआ, तो ये कहते हाँ ये हुआ मम्मा, तो मुझे अच्छा मैं इसको ये नहीं बताती। कोई बात नहीं, अब it's like अब तो yeah, he's on his own, yeah. No, I can tell him. I never disclose to him कि I know his password. And अच्छा, आपको लगता है जब बच्चा एकेडमिकली बहुत ग्रो कर रहा है तो जो कई बार क्या होता है, जो लाइफ स्किल्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती? No, never. He is into Casio also, मतलब he plays Casio also. Now अब IIT गया है तो वहाँ पे इसने वायलिन लिया है. He is into dance also, वहाँ पे डांस ग्रुप्स भी ज्वाइन किए हुए हैं इसने. Then he is into football also, वहाँ पे फुटबॉल भी खेलता है. अभी he was not well, इसको stomach infection हुई थी, and then he was playing basketball. मैं कहा भाई stomach infection है, रेस्ट करो. But नहीं, मैंने करना है. Right. He is into all these things. He is into dramas also, everything. हाँ, जैसे वामन का ये था कि वामन को गिटार और ये सब कुछ तो बजाते हैं, बट ही लव्स टू डू क्विजिंग, तो इसने अच्छा क्विज में इसने अच्छा विन भी किया और इसको लगता था कि मैं जाऊंगा, मैं कहा मत जा यार एग्जाम्स है, फिर भी वेंट टू अहमदाबाद एंड दे वन। तो हाँ, आई थिंक जो ये इतने टफ एग्जाम्स होते हैं ना, फॉर दैट यू हैव टू बी होलिस्टिक हर तरफ से। इफ यू आर नॉट एक्सेलिंग, मतलब नहीं रख रहे हो ना अपना, हाँ। अब अगर अपना कुछ स्ट्रेस बस्टर चीज नहीं रख रहे हो, बिल्कुल, तो आपका स्ट्रेस किस तरफ बैकफायर कर जाएगा। यस, तो उसके लिए आपको एक ओकेशनल कुछ होना चाहिए, लाइक कैसी हो गया, गिटार हो गया, कुछ भी, anything, इट इज मस्ट, इट इज मस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।